Order number 8 on the supplementary order of the day. I, Senator Salim Mandviwala, and on behalf of other senators also, to seek and leave under sub-rule 4 of Rule 278 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, to move that the sub-rule 5 of Rule 166 of the said rules may be substituted as under. So this is an amendment to the Senate rules under Rule 278. So, जी आपने amendment पढ़ी है? जी. Public petition The submitted. public petition submitted by a citizen or group of citizen in prescribed form as provided in Rule 277 of these rules may be presented on any matter of public importance, including grievances arising out of disputes where the circumstances disclose an element of public interest, systematic concern, regulatory oversight, or protection of rights. Following such consideration, the committee may issue observations or recommendations for systematic or regulatory improvements, and B, facilitate guidance for resolution of the grievance placed before it, to take necessary steps for disposal of the matter in accordance with the relevant law, provided that notwithstanding anything contained in the rule, the Chairman Senate may at his sole discretion review, admit, pend, dispense with or decline to proceed with any petition, if in his opinion such action is necessary in the interest of the proprietary parliamentary discipline, or to prevent frivolous, vexatious or otherwise inappropriate proceedings. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. So the member has the leave of the House to move the proposed amendment. जी. Order number 9. Senator Salim Mandviwala साहब, मोहम्मद अब्दुल कादिर, अनुशा रहमान साहबा, पलक शाह मोहम्मद जई साहबा, फैसल वावडा, सैयद मसूर एहसन साहब, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती साहब, सरदार अलहाज मोहम्मद उमर गोगेश साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, Sayyid Waqar Mehdi Saab may move order number 9 on the supplementary order of the day. Order number 9 says, I, Senator Salim Mandviwala, on behalf of other senators, to move that the proposed substitution of sub-rule 5 of Rule 165 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 to be taken into consideration. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the proposed amendment is referred to the Committee on the Rules of Procedure and Privileges for consideration of the report. जी सर, आजम साहब अगला बताइएगा. जी हाँ जी, एक सेकंड, एक बात जी सर. Sir, I, on behalf of, sir. जी सर, मोहम्मद हनीफ फमासी साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवे में मूव order number 11 on the supplementary order of the day. Sir, please. Sir, I, on behalf of Mr. Muhammad Hanif Abbasi, Minister for Railways, to lay before the Senate the transfer of Railways Amendment Ordinance 2025, Ordinance number 10 of 2025, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. This is for information, sir. Later. Ordinance is stand laid. It is laid first in the Senate. Therefore, in the term of paragraph B of the clause 3 of the Article 89 of the Constitution, it will be treated as a bill introduced in the Senate. Accordingly, the bill stand referred to the standing committee concerned. जी सर. सर अपना सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हुक्म कीजिएगा. सर पब्लिक के इंपॉर्टेंस पे बात करनी थी अगर. थैंक यू सर. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. अच्छे हैं, मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं. मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं इस पे. अब आई सर्दी, बलूचिस्तान का
एक अलमिया ऐसा है, जब गर्मी आ जाए तो बिजली गायब हो जाती है, और जब सर्दी आ जाए तो फिर गैस गायब हो जाती है। मिस्टर चेयरमैन, 21वीं सदी में भी हम आज यही गैस, पानी और रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हम बात करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जब हमारे, अगर मिनिस्टर साहब सुन ले तो अच्छी बात है, आजम नजीर तारड़ साहब जा रहे हैं ये, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातें हैं, मतलब मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जी मंजूर काका साहब हुक्म करें, आपके वकील भाई हैं और सुनते रहते हैं। जी जनाब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जब हम कमेटीज में बैठते हैं या हम डिपार्टमेंट्स की बातें सुनते हैं, चाहे वो वापडा के हवाले से हो या चाहे वो पेट्रोलियम जो गैस है उसके हवाले से हो, कि तमाम चीजें बेहतर है, वो ठीक से जा रही हैं। मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान में अभी भी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब सर्दियों का मौसम चले, गर्मियों में तो लोड शेडिंग होती ही होती है, अब सर्दियों के मौसम में भी दोनों गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग। अगर एक सिटी की बात करूंगा इंटीरियर बलूचिस्तान की, तो आप छोड़ दें मिस्टर चेयरमैन, बलूचिस्तान या कोयटा सिटी के हवाले से भी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है मिस्टर चेयरमैन। अब मैं एक हफ्ता गुजार के आया हूं, चला अगर लोग कहते थे, कहते झूठ कहते हैं, मैं एक हफ्ता गुजार के आया हूं मिस्टर चेयरमैन, न गैस था न बिजली थी। अब जब हमने बात की कि आपके मीटर जो घर पे लगे हुए थे, बिजली के हवाले से बात करूंगा, वो मीटर घर से उठा के पोल्स पे लगा दिए। जब हमने उसे कहा कि पोल्स पे क्यों लगाए, कह रहे अब इस हवाले से लगा रहे हैं कि लोग इससे चोरी कर रहे थे और अब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। मिस्टर चेयरमैन, वो पोल पे लगे और लोड शेडिंग भी उसी तरह चल रही है, लेकिन जो बिल्स है उसकी भरमार है। मिस्टर चेयरमैन, खुदारा इस गरीब आवाम पे रहम करें, इनकी जिंदगी पे रहम करें और इनके बच्चों पे रहम करें मिस्टर चेयरमैन। इसी तरह अगर गैस की बात करूंगा, सेम यही मसला है मिस्टर चेयरमैन। बलूचिस्तान में अब जो माइनस चल रहा है मिस्टर चेयरमैन, अब माइनस में जब 8-8 घंटे, 10-10 घंटे का यही गैस का लोड शेडिंग हो, तो लोग किसके पास जाए, कहां जाए मिस्टर चेयरमैन? हम तो यही कहेंगे, फिर कहेंगे कि बलूचिस्तान का रोना रो रहे हैं और बलूचिस्तान का भी पूरा ही नहीं होता। यहां पे दोस्तों ने पहले भी बात की थी मिस्टर चेयरमैन, अगर ये हालात हो, गैस मेरा हो, पूरे पाकिस्तान को जा रहा हो और मुझे गैस ना मिल रहा हो, तो इतना ही अफसोस की बात है मिस्टर चेयरमैन। हम तो इस काबिल भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन कि जो आपका हेड ऑफिस है आपने सिंध में बनाया, कराची में बनाया। कराची के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर गैस बलूचिस्तान से निकल रहा है तो फिर हेड ऑफिस भी बलूचिस्तान में होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं उसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन कि अगर उसमें एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, आप जाके देखें बलूचिस्तान के कितने लगे हैं, छोड़ देता हूं उसको, लेकिन कम से कम बलूचिस्तान के लोगों को गैस तो दे मिस्टर चेयरमैन, हाँ बिजली तो दे मिस्टर चेयरमैन। इस माइनस में आप जाके उनकी जिंदगी देख लें मिस्टर चेयरमैन, क्या कसूर है उनका? कहते हैं कि बिजली चोरी, बिजली तो आप खुद, जो आप लोग चोरी करते हो उसका मलबा सारे अवाम के ऊपर डाल देते हो। आप कहते हो कि पीछे से गैस नहीं आ रहा, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन आप आवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहते हो मिस्टर चेयरमैन। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने आवाम को रिलीफ देना है, मैंने इस गरीब आवाम पे रहम करना है, मैंने इस गरीब आवाम को तालीम देना है, मैंने इस गरीब आवाम को सेहत देना है। आपने कभी सोचा भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन, और न कभी आप सोचेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है। अगर आपकी नीयत होती तो शायद अवाम इस वक्त जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं ये न करते मिस्टर चेयरमैन।
हवा में एक नवाले के लिए तरस रही है मिस्टर चेयरमैन। अभी आप देख ले बिजली पेट्रोल का 2 रुपए कम कर दिए और जब बढ़ाया जाता है तो फिर 8-9 रुपए बढ़ाया जाता है। जब आप पेट्रोल बढ़ा देते हो तो उससे जो महंगाई का जो एक तूफान आता है वो भी सबके सामने है मिस्टर चेयरमैन, वो भी किसी से टिका छुपा नहीं है। खुदा रहा इन अवाम पे तो अभी रहम कर ले मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू सेनेटर मजूर काकर मिस्टर साहब। चेयरमैन ठीक है मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू। सेनेटर मसूर हसन साहब शायद आप किसी भी बात पे बोलना चाहते, फिर इकट्ठा जवाब दे दी, शायद उनका भी। कुमरो साहब को पहले दे दें सर। 1 मिनट, सेनेटर मजूर काकर साहब की बात रहेगी तो सर एक बात सर, हुक्म से। मिस्टर चेयरमैन, साथ साथ जो ये PIA का जो मसला पड़ा हुआ है, अभी बलूचिस्तान से कराची जाना हो, लाहौर जाना हो या इस्लामाबाद आना हो, 80,000 85,000 रुपए का फेयर आ रहा है मिस्टर चेयरमैन। मेरे ख्याल से ये फेयर दुबई के हवाले से भी सस्ता हो, लेकिन बलूचिस्तान के लिए ये फेयर मिस्टर चेयरमैन ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती होगी। इसके हवाले से भी अगर मिनिस्टर साहब देख ले कि जो ये फेयर आ रहा है ये अवाम के साथ जुल्म है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मिस्टर चेयरमैन। इसलिए कि वहां पे जो रोडों का मसला चल रहा है, जो बलूचिस्तान के हालात है, लोग ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते मिस्टर चेयरमैन। उसके बाद जो ये 80,000 85,000 जो फेयर्स रखे गए हैं, ये इंतहाई जुल्म की बात है मिस्टर चेयरमैन। खुदा रहा मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन चीजों को जरा गौर कर लें मिस्टर चेयरमैन, और इनकी तरफ अगर थोड़ी तवज्जो दे दें। बाकी चीजें तो मुल्क में चल रही है और वो चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे मिस्टर चेयरमैन तो ये आवाम खुदा ना करे मिस्टर चेयरमैन अगर ये निकली तो ये फिर हम सब के लिए ठीक नहीं होगा। काका साहब आपने बहुत अहम बात की है। सेनेटर मसूर एहसन साहब जो है आपसे पहले आप बोलें जी। जमीर सेनेटर जमीर गुमराह साहब। मंजूर अहमद काकर साहब ने, सेनेटर साहब ने जो बात की कि हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान से और सिंध में एक ही इशू है कि विंटर के दौरान जो गैस लोड शेडिंग होती है, क्योंकि दोनों प्रोविंसेस जो है वो गैस जो है तकरीबन 92% ऑफ द पाकिस्तान की गैस सिंध और बलूचिस्तान पैदा करते हैं। 70% सिंध करता है और 22% बलूचिस्तान करता है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है कि पहली प्रायोरिटी उस सूबे की होगी जहाँ से वेल हेड ऑफ द गैस निकलता है। तो मेरे ख्याल में सिंध में और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, आपको भी आप मिस्टर चेयरमैन साहब वहाँ से हैं, तो वहाँ जो लोड शेडिंग की सिचुएशन है सिंध में, अभी विंटर में इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर के अलावा जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल उस पर अफेक्ट हो रहा है। तो ये अगर मिनिस्टर साहब कह दें कि वाई दिस सिचुएशन डेवलप्स, और गवर्नमेंट की क्यों इतनी प्लानिंग नहीं है कि हर विंटर में ये इशू होता है कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ से जो है वो आवाज़ आती है कि हमारी आउटपुट ही ख़त्म हो गई है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग विंटर तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोड कम होता है, वो भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब है सिंध और बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली। मैं मंजूर साहब की बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये अवामी मसले हैं, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के हैं, ये कोई उसमें क्रिटिसाइज करने का नहीं है, लेकिन ये इशू को जो है रेज करना है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू हैं। तो गैस और बिजली का जो इशू है, और इवन फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी भी सूबे में उस सूबे के मफाद में एक्सरसाइज करेगी, वो भी देखना चाहिए। और आवाम के जो मसाइल हैं गैस और बिजली के हवाले से बड़ी तंगी है विंटर में सिंध में और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, तो इस मसलों को फेडरल गवर्नमेंट जो है टेकअप करे। और जो इसकी PPL और स्वी गैस के हेडक्वार्टर हैं, खासतौर पर PPL का हेडक्वार्टर, क्योंकि तेल भी ज़्यादातर 56% से ज़्यादा सिंध से पैदा होता है। PPL अपना हेडक्वार्टर कराची से जो है इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है, उसके क्या असबाब हैं? क्योंकि ज़्यादा तेल तो जो है वो सिंध पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में उनमें मुलाजमीन में भी बेचैनी है और गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि तमाम हेडक्वार्टर्स जहाँ से जो है वो बलूचिस्तान से या सिंध से क्यों शिफ्ट किए जा रहे हैं इस्लामाबाद। थैंक यू। थैंक यू जी। सेनेटर अब्दुल शकूर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जनाब चेयरमैन साहब, पहले तो मेरी गुजारिश होगी, शायद मैं ज़्यादा इस बात को न समझूं, आप मुझे समझा दें कि हमारी बातें करने का पब्लिक इंटरेस्ट पे हम बात करते हैं तो कोई सुनने वाला या कोई अमल करने वाला
क्योंकि सिर्फ बात करने